الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم۔ آج حلقہ کشف المعجوب سبق نمبر 116 ہے۔ اس کا آغاز اپریل 2010 میں، جس کو 14 سال ہو گئے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، سبقاً طالب علم ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جو مسلسل کشف المحجوب کے پچھلے سبق سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، بلکہ یہاں تک تجربے میں بات ایک دفعہ نہیں بار بار آئی ہے۔ دل کی کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، زندگی مسائل مشکلات الجھنوں میں جکڑی ہوئی ہو، تو 90 کشف المحجوب درس سننے کی منت مان لے۔ گاڑی، گھر، دفتر، جہاں بھی اس کا بہت نفع میں نے دیکھا، بہت فائدہ دیکھا۔ چاہے روز 1 سنیں، 2 سنیں، تھوڑا سنیں، زیادہ سنیں، اس سے بہت زیادہ میں نے تاثیر پائی ہے، فائدے پائے ہیں۔ کشف المحجوب کا درس اور سبق جو ہم مسلسل پڑھ رہے، سن رہے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں حضرت ابو بکر محمد بن موسیٰ الواسطی، واسط شہر بنو امیہ کے خلفاء نے درمیان میں وسط میں ایک شہر بنایا تھا، اس کو واسط کہتے ہیں۔ تبع تابعین میں اپنے فن میں امام، بلند حال، لطیف کلام، محقق مشائخ میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے قدیم اصحاب میں سے تھے۔ آپ کی عبارت بہت مشکل ہوتی تھی، اہل نظر کی آنکھوں میں جچتی نہ تھی۔ آپ کسی شہر میں زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے اور کسی شہر میں زیادہ دیر نہیں آرام کرتے تھے۔ تو آپ مرو شہر میں آئے تو لطائف طبیعت کی وجہ سے نیک سیرت تھے، انہوں نے نہایت عزت و احترام دیا، آپ کو قبول فرمایا، کلام سنا اور پھر زندگی وہیں گزاری۔ آپ فرماتے ہیں اہل ذکر کو اس کے ذکر میں ان لوگوں سے زیادہ غفلت ہوتی ہے جو اس کے ذکر کو فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے جب اس کو یاد رکھے، اس کے ذکر کو فراموش کر دے تو کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے۔ اسے پھر سنیے، اس کا ذکر تو کرے مگر اس کی یاد کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ اللہ کا ذکر حضوری مانگتا ہے، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور دھیان کس کا ہو؟ اللہ کا۔ ذکر بھی اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا۔ ہاں، نقصان اس میں ہے کہ ذکر تو کرے مگر اس کی ذات کو فراموش کر دے، کیونکہ اس صورت میں ذکر بے حضور ہوگا۔ پس اللہ جل شانہ سے روگردانی اس کے ذکر کے باوجود جو غرور پیدا کرے غفلت سے زیادہ نزدیک ہے، مقابلہ اس کے روگردانی کے جو غرور، کیونکہ اسے بھلا دینے والے کو غیبت فراموشی کے وقت، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ حضوری کے بغیر حضوری کا زوم اس غیبت کے مقابلے میں کوئی زوم نہ ہو۔ لہذا اگر آپ اپنے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو حضوری ملی، لیکن اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا۔ ایک ہے حاضری اور ایک ہے حضوری۔ حاضری بہت مشکل چیز ہے، لیکن حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حضوری اس سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ حاضری مل جانا مشکل ہے۔ آپ خود سوچیں، آج کے حلقہ کشف المحجوب میں
कितनी मुश्किल से तशरीफ लाए, क्या मजबूरियां, क्या मसाइल, क्या उलझने, क्या हालात की सख्तियां, तंगियां, किसी की जेब कमजोर, किसी की तबीयत कमजोर, किसी के जज्बे कमजोर। चलो उसकी करीमी हाजिरी हो गई। अब हाजिरी के बाद हुजूरी चाहिए, हुजूरी चाहिए। और हुजूरी उस वक्त कहते हैं जो हुजूरी की मश्क करे, जो हुजूरी की मश्क करे। अगर हुजूरी ना हुई नुकसान होगा। मैं हुजूरी की एक मिसाल देता हूं। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर करके गाड़ी ली, फिर गाड़ी लेके ड्राइविंग सीखी, फिर ड्राइविंग सीख के गाड़ी चलाई और गाड़ी की हुजूरी ना ली। सामने बच्चा आ रहा, कुत्ता भागता हुआ आ रहा, एक जानवर भी आ रहा, ये गाड़ी बंदा लेन से पार कर रहा। इसको सारा ड्राइवर एक एक चीज को तोल रहा होता है कि मैंने गाड़ी को सवार और सवारी को बाहिफाजत मंजिल तक कैसे पहुंचाना है। इसका नाम हुजूरी है। हाजिरी तो हो गई, हाजिरी तो हो गई। हुजूरी अगर ना हुई हादसात का खतरा है। हाजिरी हो गई, हुजूरी ना हुई, हादसात का खतरा है, और बहुत ज्यादा खतरा है हादसात का। गफलत है, गैर जिम्मेदारी है। एक साहब मुझे बताने लगे कि मेरे पीछे मैंने पानी का कूलर रखा हुआ था, उसकी टूंटी जो है वो थोड़ी थोड़ी पानी उसमें टपक रहा था। तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने हाथ पीछे करके उसकी टूंटी को जरा मैंने कहा कस दूं, मजबूत कर दूं। बस इन चंद लम्हों में गाड़ी मेरी नीचे उतर गई। हाजिरी है। आपकी मेहरबानी, सोए ना और मैं ही सो जाऊंगा। हाजिरी है, हुजूरी नहीं। जैसे अभी हाजिरी थी, हुजूरी नहीं थी, बंदा सो गया। तो हाजिरी मुश्किल है, उसके बाद हुजूरी की मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या ख्याल है, कोई भी बंदा वर्दी में है और अपने एक अफसर के सामने जाता है और उसके अफसर ने उसे बुलाया है और उसे पता है कि उसके अफसर के पास ये अख्तियारात हैं, तो वो कौन सी हुजूरियों को मुज्तमे करेगा? आंखों का चपकना, अल्फाज की तरतीब, अपने जिस्म के अंदाज, हर चीज को सही सलीके से उनकी मुलाकात में इस्तेमाल करेगा। जब ये चीजें इस्तेमाल करेगा तो अफसर उसकी एक एक नोक पलक देख रहा है और नंबर लगा रहा है, जिसको एसीआर रिपोर्ट कहते हैं। खुफिया रिपोर्ट होती है जो तरक्की के लिए बनना जरूरी होती है कि इस बंदे को अगली तरक्की क्या देनी चाहिए। इसी तरह हमारी हाजिरी के बाद हुजूरी का हमें फिक्र हो, हाजिरी के बाद हुजूरी का फिक्र कि या अल्लाह तेरी बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ, तेरी बारगाह में कबूल हुआ या नहीं हुआ। मुझे जो खिदमत मिली उसमें मेरी अजमत रही, अदब रहा, तलब रही, तवज्जो रही। फिर सुने, अजमत रही, अदब रहा, तलब रही, तवज्जो रही। कीमत कर दिया, रोज का काम है, रोज का चलना है, ठीक है, चलता है, चलो ना चलो ना चलो। अच्छा, एक तरफ, दूसरी तरफ मैं कहीं नौकरी और जॉब कर रहा, उसके लिए मेरे दिल में कितनी हाजिरी है और हुजूरी है, कितनी हाजिरी है और हुजूरी है। एक दुर्वेश थे बाबा जी मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक बंदा उनके पास आया कि हजरत फलां दिल्ली का सेठ है, आपका जानने वाला है, अगर आप फरमा देंगे मैं वहां नौकरी कर लूंगा, मुलाजमत कर लूंगा।
اور باقی وقت میں اللہ اللہ بھی کروں گا آپ کی خدمت میں آ کے، تو اس سے بچوں کی کوئی روزی روٹی کا سلسلہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کے فرمانے سے وہ بات کو اٹھائے گا نہیں۔ آپ نے کہہ دیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں کریں۔ بڑا اچھا وقت گزرا، بہت اچھی ترتیب گزری۔ سالہ سال کے بعد اس دلی کے سوداگر نے اس بندے کو کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ نے میرے پاس نوکری کے لیے نہیں آنا۔ اس نے کہا میرا کوئی قصور؟ اس نے کہا بس آپ جائیں۔ وہ بابا جی کے پاس پھر آیا، بابا جی اتنے سال میری کوئی بددیانتی بتائیں، میرا کوئی قصور بتائیں، کس وجہ سے مجھے نوکری سے فارغ کیا، وہ وجہ بتا دیں۔ بابا جی نے انہیں بلوایا، دلی کے سوداگر کو ادب کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس نے جو بات سنائی وہ بات بڑی عجیب ہے۔ اس نے کہا جی اس کی بددیانتی، اس کی خیانت، کسی چیز میں مجھے اشکال اعتراض نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دکان کھلوا کے دی ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنے بیٹے کو دکان کھلوا کے دی ہے، میں نے کہا اب میرے کام کا نہ رہا۔ پہلے حاضری بھی تھی، حضوری بھی تھی، اب حاضری ہوگی، دل دماغ بیٹے کی دکان پہ لگا رہے گا۔ اس کو چمکانا کیسے ہے، چلانا کیسے ہے، بڑھانا کیسے ہے، مال آئے گا کیسے، جائے گا کیسے، خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ تو مجھے تو اس کا دل دماغ اور دعا، تین چیزیں چاہیے، اس کا جسم نہیں چاہیے۔ ہاں یہی میرا اللہ چاہتا ہے، اور یہی خدمت چاہتی ہے جس شعبے کے بھی ہو، یہی خدمت چاہتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہو اس لیے فرمایا جہنمیوں کو کہے گا ان کے منہ میں کیچڑ بھر دو، ان کی آواز بھی نہ آئے، یہ مجھے میسج بھی نہ کر سکے، اس قابل نہیں ہے۔ اور اللہ پاک جہنمیوں کا جو سپریڈنٹ داروغہ بنائے گا، مالک اس کا نام ہے، اللہ اس کو بہرا کر دے گا کہ جہنمیوں کے چیخو پکار یہ سن ہی نہ سکے۔ کہا کہ میں نے اس کو نوکری سے فارغ اس لیے کیا ہے، اس کی پہلے حاضری کے ساتھ کیا تھا، حضوری تھی، جس حضوری کو ہم کہتے ہیں دل دماغ دعا۔ عبادت میں بھی دل بھی حاضر ہو، دماغ کہ میری کتنی رکعتیں ہو گئیں، کتنی دفعہ سبحان اللہ، اب یہاں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اب التحیات، اب سلام۔ یہ دل دماغ اور دعا کے کلمات کو پڑھنا کس استحضار، کن کیفیات اور کن توجہات کے ساتھ میں قرآن، تسبیح، نماز، اعمال کر رہا، یہی خدمت میں چیزیں ہیں، یہی عبادت میں چیزیں ہیں۔ شیخ ابوبکر محمد موسیٰ الواسطی رحم اللہ فرماتے ہیں یہی سب کچھ، یہی سب کچھ، یہی سب کچھ میرا اللہ کہتا ہے مجھے چاہیے بندے سے۔ اس لیے فرمایا وہ نماز جس میں حضوری نہ ہو، اللہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اس لیے ایک درویش تھے، وہ نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت کیوں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ میری نماز میرا اللہ منہ پہ نہ مار دے، میرا اللہ میری نماز منہ پہ نہ مار دے۔ آپ زندگی کے تجربات میں دیکھ لیں، زندگی کے تجربات میں دیکھ لیں، آپ زندگی میں کسی بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، رکھ رکھاؤ چلتے ہیں، اگر وہ بندہ 100% حضوری میں نہیں ہوگا، آپ اس کی زندگی میں آپ کو اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، آپ کی راہیں جدا ہو جائیں گی۔ میں اس کی حضوری کو بھی عرض کرتا ہوں۔ کسان کی حضوری، اس کا کھیت، اس کی زمین، اس کا زمین کا موسم ہے، سارا جہان گندم بو رہا اور یہ کپاس بو رہا، تو ہر بندہ کہے گا
हाजिरी तो है, हुजूरी नहीं है। अब तो गंदम का वेला है, मौसम गंदम का है, और कपास का बीज जमीन खा जाएगी। मौसम है ही नहीं, मौसम है ही नहीं। और जिस वक्त जमीन को पूरी तैयारी है, एक एक हमारे पड़ोस में एक धोबी होता था, उसके पास एक बड़ा जिम्मेदार आता था, मुझे उसके अल्फाज आज भी याद हैं। उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी, वो फसल पे हाजिरी के साथ हजूरी भी देता था। वो कैसे? कहता था, हल जब चलते हैं ट्रैक्टर के, हलों के ऊपर मैं खुद बैठा होता हूं। क्या हल गहरा जा रहा, या मेरा मुलाजिम ऊपर ऊपर से जमीन तोड़ के कहते हैं मैंने हल लगा दिए। जो हल अगर गया है गहरा, तो मेरी फसल की जड़ें नीचे जाएंगी। असलहा साबितुन व फरवा फिर समा, फिर जड़ें साएंगी। इसको कुरान कहते हैं, जड़ें नीचे जाएंगी, फसल ऊपर उगेगी, और मेरी फसल चांदी सोना होगी। अगर मैं ऊपर से हल उसने मार दिए ऊपर ऊपर से, और हुजूरी न हुई, हुजूरी न हुई, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? उसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि मेरी फसल में मुझे वो आमदनी, वो पैसे, वो रकम नहीं मिलेगी। मेरा मुलाजिम मुझे धोखा देगा, वो कहेगा हल लग गए हैं, लिहाजा बीज डालें। मैं बीज डालूंगा, जमीन का गहरा खुदा हुआ होगा नहीं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब पौधे, आम का मिजाज है, आम खड़ा खड़ा मर जाता है, पता नहीं क्यों, अल्लाह का निजाम है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, घोड़ा, घोड़ा, आपने लफ्ज नहीं देखा होगा, घोड़े बेच के सोया, यानी जब बिक गया फिर चैन की नींद आई, जब बिक गया फिर चैन की नींद आई। घोड़ा बेटा, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे। और आम का पौधा बड़ी मुश्किल से बचते हैं, बड़ी मुश्किल से पलते हैं। बेटियां मरते मरते बच जाती हैं, बेटे बचते बचते मर जाते हैं, फरमाते थे। और उसके लिए क्या करते थे? आम अपनी जड़ें नीचे ले जाए, उसको बहुत नीचे खुदवाते थे, पक्की जमीन खत्म कराते थे, फिर पक्की जमीन की मिट्टी में रेत मिलवाते थे, रेत, और रेत मिलवा के उसको नरम करते थे, नरम, फिर आम का पौधा, फिर वो जड़ें पकड़ता था। जिंदगी का हर निजाम हाजिरी के साथ हुजूरी चाहता है। जिंदगी का हर शोबा हाजिरी के साथ हुजूरी चाहता है। कहने लगा, तेरे खाते सारे नामुकम्मल हैं, तूने क्या खाते बनाए हैं? उन्हें मैंने मोटा मोटा लिखा था, ये हाजिरी है, और एक एक पैसा बारीक बारीक लिखना। उसने कहा इसके खाते मुकम्मल हैं, ये हुजूरी है। नमाज, तस्बीह, शेख की खिदमत में हाजिरी, अपने मुर्शिद खाने में हाजिरी, कभी कभार है या हर पल है। अपनी हर हाजिरी के बाद मन में सोचें, क्या मेरी हुजूरी रोज बरोज कम हो रही? मेरा अपने मुर्शिद के साथ ताल्लुक बढ़ रहा? उस ताल्लुक के बढ़ने का ताल्लुक इस बात से नहीं कि मैं उनके सामने बैठा रहूं और वो मेरे सामने बैठे रहे, नहीं। असल बात दिल के साथ ताल्लुक होता है। दिल में तलब, ताल्लुक की मैं आप बुनियादें बता रहा हूं। तलब 1, तड़प 2, तलाह 3, अदब 4, अजमत 5, हुक्म की अजमत, फरमान की अजमत, हाजिरी की अजमत हो, अजमत हो। मक्का मुकरमा में मुझे कई लोग मिले, साल साल से रहते हैं, काबा नहीं गए। मदीना मुनव्वरा में कई लोग मिले, साल साल से मदीना रहते हैं, आका के रोजे पे हाजिरी सलातो सलाम की नहीं हुई, और उनके दिल में मक्का और मदीना की अजमत खत्म हो गई। हाजिरी का ताल्लुक मुश्किल है, हाजिरी के बाद हुजूरी। दम हुआ,
दम का एक झलक मेरे लिए कितनी मुअस्सर साबित हुई, ये उसको फायदा होगा दम का जिसके अंदर हुजूरी होगी, अजमत होगी, तलब होगी, तड़प होगी, जज्बा होगा। ये जिंदगी का सफर जो अल्लाह जल्ल शान ने आपको दिया है और आप इस रूहानी सफर में चल रहे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। मेरी आवाज को जहां जहां कोई भी सुन रहा वो खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने आपको रूहानी सफर के लिए चुना है। अब सफर तो हो गया, सफर तो हो गया, लेकिन उस सफर में से 100% खैरें कैसे पाऊं, खैरें कैसे पाऊं। मैं सफर में जाता हूं ना, तो बच्चों की कोशिश होती है कि खिड़की के साथ बैठें, देखें नीचे समंदर जा रहा, जहाज जा रहा, जहाज के साथ और बहरी जहाज जा रहे, ये रनवे पे जाता कैसे। बच्चों का एक मिजाज है, वो हाजिरी के साथ हुजूरी भी चाहते हैं। ये वहां की हुजूरी है, ये उस सीट की हुजूरी है। हमें हर पल हुजूरी की तलाश कर। एक दरवेश थे, उनके नाम के साथ था दायम, दायम, हाँ, जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो। हर वक्त उसी के ताल्लुक में, उसी की मोहब्बत में, उसी के इश्क में ऐसा डूबा लोग मुझे पहचान ही ना सके। कोई दुनियादार कहे, कोई दुकानदार कहे, कोई ईमानदार कहे, कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, और मैं अपने आप को क्या कहूं कि दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। ये बाखुदा हुजूरी है। दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। कुन फिद दुनिया गरीबन, दुनिया में ऐसे रहे जैसे कोई परदेसी मुसाफिर है, सबसे जुदा रहे, कोई मुझे पहचान ही ना सके। कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर, कोई दुकानदार, कोई ईमानदार कहे, समझे, सोचे। दायम हुजूरी उन दरवेशों के नाम के साथ निस्बत थी। दायम हुजूरी, दायम हुजूरी उन दरवेशों के नाम के साथ निस्बत थी। दायम हुजूरी, दायम हुजूरी। एक दरवेश थे, उन्होंने अपने खादिम से, मुसलसल खादिम ये चाह रहा था, हजरत इतने साल हो गए हैं, अब मुझे खिलाफत खरका और इजाजत अता फरमाएं कि मैं अपने इलाके में आपकी खिलाफत की आवाज लगाऊं और लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाऊं। हजरत फरमाते थे नहीं, तो अभी कच्चा है, तो अभी कच्चा है, अभी अपनी तबीयत को देख के चल रहा, हुक्म को देख के नहीं चल रहा। ना हजरत, मैं आप मुझे आजमा के देख लें। अच्छा ठीक है, ठीक है। हजरत ने फरमाया भाई अंदर भागो, हमें भूख लगी है और खजूरें ले आओ, और देखो शरई तौर पे ले आना। जी हजरत ठीक है। खजूरों की थाली मुट्ठी जो भी है भर के ले आया, हजरत के सामने रखा। मैं तो अभी कच्चा है। हजरत खजूरें, फरमाया हमने लफ्ज शरई कहा था तो ताक ले आता, 1 3 5 7 9 11 जितना भी, तो ताक ले आता। हजरत का एक खादिम था, उससे मोहब्बत करते थे, बाकी दिल जले, कहते थे कि इससे इतनी मोहब्बत और हमसे इतनी दूरी, जबकि हम खिदमत और तमाम जिंदगी में कुर्बानियां हमारी ज्यादा हैं, इतनी खिदमत और हमसे इतनी दूरी। तो फरमाया कि एक दफा हजरत ने फरमाया, सबको जमा किया। हजरत जिससे मोहब्बत फरमाते थे उससे फरमाया नहीं, जिनसे जो दिल जले थे। ऊंट खड़ा था, ऊंट। हजरत ने एक से फरमाया जो सबसे ज्यादा दिल जला था
मैं भाई इधर आओ, भागो, जी हजरत जी हजरत, इस ऊंट को उठा के ना छत पे रखा। हजरत को देखे कि हजरत की दिमागी सेहत ठीक है। वो देख, भाई ऊंट को उठाओ, जल्दी करो, इसको छत पे रखो। हजरत तो ऊंट हुआ या बकरी का बच्चा हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए मुशक। उससे अगला दिल जला, उससे अगला दिल जला, उससे अगला दिल जला, करते कराते सब कहने लगे हजरत ऊंट कैसे मुमकिन है। अब बुलाया उसको जिससे मोहब्बत थी। जी हजरत, फरमाया इस ऊंट को उठाओ और उठा के छत पे रखो। जी ठीक है। अब ये दौड़ा, अब ये दौड़ा, कभी ऊंट की एक टांग को लिपटता है, कभी दूसरी टांग को लिपटता है, जोर लगा, पसीना पसीना। ऊंट था कोई बकरी का बच्चा, भेड़ का बच्चा था। ऊंट कहां हिले? जब देखा ना आजिज आ गया और कुछ नहीं कर सकता, पर मैं वापस आओ। फिर उन सबको बिठाया, बिठा के कहा तुम्हारे और इसमें ये फर्क है, तुम अपनी तबीयत और अकल को देख के चलते हो, ये हुक्म की हुजूरी और इश्क को देख के चलता है। होगा कि मुमकिन नहीं, लेकिन इसने फैसला किया कि मैंने ऐसा करके दिखाना है। क्यों? हुक्म है, हुक्म पूरा करने की ताकत मेरे अंदर जितनी है मैं कर गुजरूं, बाकी अल्लाह पे छोड़। खिदमत हुजूरी मांगती है, इबादत हुजूरी मांगती है, हुजूरी मांगती। हजरत के खादिम थे, हजरत के खादिम थे जो सारा दिन सर पे पुराना सा कपड़ा बांधा, पुरानी सी धोती, पुराना सा कुर्ता, और कभी जानवरों की खिदमत कर रहे कि शाम को जो आते हैं हजरत के खानकाह में, वो जानवरों को जो है उनको दूध देना, गोबर को संभाल रहे कि उसको जलाना, और जो खुद्दाम आके पाखाना करते हैं उसको टोकरी में उठा के जंगल में फेंक के आना, और चारपाइयां चटाइयां बिछाना, सफाइयां सुथराइयां करना। और बाज सर फिरे उनसे भिड़ जाते थे और उनकी जी भर के बेइकरामी करते थे, उसको सह जाना, पी जाना। दिन रात इसी खिदमत में लगे रहते थे। हजरत की खानकाह और आस्ताने में हजरत को कोई परेशानी उनके होते हुए नहीं होती थी। नब्ज शनास भी थे, मिजाज शनास भी थे, हुक्म शनास भी थे। हाजरी के बाद उनके मन और जियों में हुजूरी अंदर से अंदर चली गई थी। हाजरी के बाद उनके मन और जियों में हुजूरी रच बस गई थी। अब ये ऐसे चलते रहे, सख्तियां तलखियां बर्दाश्त करते रहे, करते रहे, खिदमत को नहीं छोड़ा। मैं एक लफ्ज अक्सर अर्ज किया करता हूं, हर खिदमत के साथ नागवारी जुड़ी हुई है। वो खिदमत अल्लाह की हो, वो खिदमत अल्लाह के हबीब की हो, और वो खिदमत मुर्शिद की हो, माँ बाप की हो, मुआशरे की हो, और सिला रहमी की शक्ल में खिदमत हो। सिला रहमी की शक्ल में नागवारी जुड़ी हुई है, नागवारी जुड़ी हुई। चलते रहे, चलते रहे, न जवाब दिया, न वजाहत की, लोगों की बेइकरामी सहते रहे, खिदमत के किसी शोबे को नहीं छोड़ा, मुर्शिद और मुर्शिद खाने की अजमत को नहीं छोड़ा, अदब को नहीं छोड़ा। 100 वसवसे, 100 बदगुमानियां लोग डालते हैं, हमेशा डालेंगे। नबी जैसी हस्ती अलैहिस्सलाम के लिए बदगुमानियों की इंतहा आई। जो नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, उनके लिए बदगुमानी आना कोई अनोखी चीज नहीं, लेकिन ये बदगुमानी आती इसलिए है, ये आशिक को आके आजमाती है, इश्क में सच्चा है या
کچا ہے۔